سامنے کرے گا تو میں اس سے بات کروں گا. لعنت تیری اس گندی بوٹی پہ ایاز حیدری. اوے ایاز حیدری تیری اس گندی بوٹی پہ لعنت, تیری جمنے والی پہ لعنت. تم لوگ, تم اصل میں قاتل ہو حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے, تم قتل کرنے والے ہو بے غیرتو. تم قادیانیوں کو اپنی گود میں بٹھا کے رکھتے ہو, مرزا کانے دجال کو گود میں بٹھا کے رکھتے ہو. تم مان کیوں نہیں لیتے؟ صاف سامنے آتے کیوں نہیں ہو؟ صاف سامنے آتے کیوں نہیں ہو؟ تم ملحد ہو, قادیانی نواز ہو تم لوگ. تمہارے دل میں نبی پاک کی یہ محبت ہے کہ ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے تو آگے سے کہہ رہا ہے نہیں وہ میرے سامنے کرے گا تو میں اس سے بات کروں گا. لعنت تیری اس گندی بوٹی پہ, لعنت تیری اس ایسی سوچ پہ. ابے ڈاکٹر محفل برخاست ہوتی والی ویڈیو لگاؤں؟ ڈاکٹر محفل برخاست والی ویڈیو لگاؤں؟ اور شرطا لعنت تیری اس گندی بوتھی پہ, تو قادیانیوں کو اپنے ساتھ بٹھائے اور نبی پاک کی گستاخی کروائے. تیرے جیسا حرام زادہ ہے ہی کوئی نہیں. اوے ایاز حیدری, اوے تو کہے کہ نبی پاک کی گستاخی وہ میرے منہ پہ کرے تو میں اس سے بات کروں گا. لکھ دی لعنت تمہاری اس بوتھی پہ. اور ڈاکٹر تو نے جھوٹ بولا, تجھ پہ بھی لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں نے کوئی مائک نہیں لگایا ہوا, لکھ دی لعنت ہے. عام آواز میری ایسی ہے, قادیانیوں تمہارے اندر گھس جاؤں گا میں, تمہارے اندر گھس جاؤں گا میں. تم لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے غلط الفاظ استعمال کیے, ایسی بری بات کی تم لوگوں نے. اپنے ذہن میں, اپنے دلوں میں تم لوگوں نے نبی پاک کی محبت کو ختم کر لیا. لکھ دی لعنت تمہارے اوپر. اور شرطا تیرے اوپر بھی لعنت. تو قادیانیوں کو ساتھ بٹھا کے رکھتا ہے, تو قادیانیوں سے گستاخیاں کرواتا ہے. ایاز حیدری, اور تیری سوچ پہ لعنت. تو کہتا ہے کہ بندہ میرے منہ پہ آ کے دوبارہ سے گستاخی کرے تو تب بات ہوگی. ایاز حیدری لعنت رافضی تیری شکل پہ. تم لوگ ایسے جھوٹے ہو, جھوٹ کا الزام نہیں سچ کہہ رہا ہوں. شرطا نے بٹھایا. ڈاکٹر شرطا تمہارا بندہ ہے, ڈاکٹر شرطا تمہارا بندہ ہے. شرطا یہاں بٹھا کے لوگوں کو, اوے شرطے تیرا اصل نام کیا ہے؟ اگر آپ کی بات ہو تیری ماں ایک ہے اور باپ ایک ہے تو اپنا اصل نام بتا. تیرا باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے تو اپنا اصل نام بتا. اور شرطا نام بتا اپنا. شرطا نام بتا اپنا. شرطا نام بتا اپنا. تیری ماں ایک اور تیرا باپ ایک ہے تو اپنا نام بتا. اللہ اکبر, استغفر نام بتا, جلدی کر نام بتا. اوے ایاز حیدری, اوے لعنتی تو کہے کہ وہ بندہ میرے سامنے کرے گا. لعنت تیری گندی بوتی پہ اور تیری جمنے والی پہ لعنت. تو نبی پاک کے ساتھ پیار محبت کا دم بھرتا ہے, جھوٹ بولتے ہو, اوپر سے تم لوگ کچھ اور ہو, اندر سے تم کچھ اور ہو. سیکر کو اتار دے, ڈاکٹر کی بہن پہ چڑھا ہوا ہے, اتار دے سیکر کو نیچے, ڈاکٹر کی بہن پہ چڑھا ہوا ہے یہ. ہڑا ساون کی گھٹا. اور کرو بات, اور تیری ایسی کی تیسی. شرطا تیری ماں ایک ہے اور باپ نیک ہے نا, تو اپنا نام بتا. ایک منٹ حیدری مائک میوٹ کر, حیدری مائک میوٹ کر, حیدری مائک میوٹ. شرطے سے پہلے بات کریں گے. ہاں شیدری, ہاں شرطے بتا. تیرا باپ ایک اور تیری ماں ایک ہے نا, تو اپنا نام بتا. بتا ذرا, جلدی کر, جلدی کر. اور نام بتا اپنا, اپنا نام بتا. مسلمان ہے, ڈرتا کیوں ہے؟ میرا نام کاشف چودھری ہے. اے میرا نام کاشف چودھری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہوں میں, جان دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر. اور تو آگے سے یہ کہے, اور نام بتا اپنا. شرطے اگر تو حلالی ہے تو نام بتا. تیری ماں ایک, تیری ماں ایک اور تیرا باپ ایک ہے تو نام بتا, نام بتا. دیکھا ڈاکٹر کا کہنا مانے گا, ڈاکٹر نے کہا خاموش رہیں, اور شرطا خاموش ہو گیا. قادیانیوں کی بات مانے گا شرطا, قادیانیوں کی بات مان رہا ہے. دیکھ لو قادیانیوں کو جھولی میں بٹھا کے بات کرنے والے. ابے چل چپ کر کے پہلے اپنا نام بتا, اپنا نام بتا. تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام کاشف چودھری ہے. بتا اپنا نام. تم لوگ نبی پاک تم لوگ نبی پاک کے بارے میں غلط باتیں کرو. جو نبی پاک کے بارے میں غلط باتیں کریں ان کو تم لائیو پہ بٹھاؤ اور ان کی پوری پوری بات سنو. جہاں مسلمان روکنے لگے, جہاں مسلمان روکنے لگے تو مسلمان کو کال سے نیچے اتارو. لکھ دی لعنت تمہاری گندی بوتیوں پر. اور تم لوگ ملحد ہو, ملحد ہو تم لوگ, اگنوسٹک ہو تم لوگ ملحد ہو, اگنوسٹک ہو تم لوگ. یہ اپنے جو تمہارا ایاز حیدری, ایوز حیدری ہے, یہ بھی رافضی ملحد ہے. یہ بھی الہادیت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نبی پاک کی گستاخی وہ میرے سامنے کرے گا تو تب میں اسے کچھ کہوں گا. لکھ دی لعنت تیری گندی بوتی میں. مرزا قادیانی تو اپنی کتابوں میں لکھ کے جا چکا ہے کتنی بار اس نے گستاخی کی ہے. ہوئے اب بولنا ہوئے, تم کیا ہو گیا, بولنا نہیں ہوئے. کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے بھائیوں آپ لوگوں نے؟ ارے ساکا بھائی کیسے ہیں؟ اللہ یار آصف بھائی کیا ہو گیا؟ یہ میں نے باہر سے سنا تھوڑا سا, یار یہ اپنے بھائی ہیں, یہ کیا کرتے ہو آپ؟ کون یہ شرطا ہو گیا, اور باقی یہ لوگ کیا یہ مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں یار؟ ہم کیا پہلے ہی ہم کافروں سے لڑ رہے ہیں, اوپر سے پھر اپنے بھائیوں کو کے اوپر بھی فتوے لگا رہے ہیں.
अरे आप ना काफी दिनों से आउट हैं ब्रॉड से। काशिफ भाई कल मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, ये जो क्रिश्चियनों से बहस कर रहा था छोटा भाई, ये ना पुरानी 6 महीने पहले से देख रहा हूँ मैं। मेरी बात सुन लीजिए जी आधा डेटा यार ये देखो फिर बीच में बोलेगा, फिर मैं ऊंचा बोलूंगा। इसको बोलो चुप करे, पहले बात करने दे। शाका भाई मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं। भाई मैं आपको एक शाका भाई मुझे जानते हैं, पहले मेरी शाका भाई ने मुझे बोल दिया है, मैं इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा। शाका भाई मेरी बात सुनिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। कोई नहीं है, मैं माइक लेके आता हूं। नहीं, शाका भाई फिर बात नहीं करने दे रहा। यार ये अपने भाइयों शाका भाई बात नहीं करने दे रहा। काशिफ भाई कसम खुदा की ऐसा दिल दुखाया ना, बड़ा दुख हुआ मुझे कि अपने भाई हमारे आपस में ऐसे कर रहे हैं, तो यार आगे क्या करेंगे फिर हम लोग। मैं माजरत के साथ अब आप तशरीफ ले आए। आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं इस रूम से जा रहा हूँ, लेकिन जाते हुए एक बात जज़ाकल्लाह काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह। जाते हुए एक बात जरूर करके जाऊंगा। मैं आपसे अलग में बात करूंगा काशिफ भाई। जिनको आप ठीक है, जिनको आप अपना भाई कह रहे हैं ना, अभी तुम्हें जाना नहीं है, जिनको तुम अपने अब आप बताएं शाका भाई मैं जाऊं या रुकूं? शाका भाई मैं जाऊं या रुकूं? शुरता भाई देखें, झूठे इंसान, गधे इंसान इधर ही रहना। तुम मुसलमान दोबारा शुरता भाई यार आप अपनी माँ का बेटा है, तो इधर ही रहना है। जाना नहीं है तुम्हें जाने नहीं देना। प्लीज शुरता भाई ये तमाशा ना बनवाएं। मेरी बात सुनिए शुरता भाई, मैंने नहीं सुनना इसकी बात। नहीं आप उसकी नहीं सुने, मेरी सुनिए। आप अलग से बाद में कर लीजिएगा बात। बेइज्जती कर रहा है तुम। नहीं देखें, इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की जात है। अगर आप इस चीज पे यकीन रखते हैं तो छोड़ें। किसी की कोई औकात नहीं है, कोई किसी को ना इज्जत दे सकता है ना जिल्लत दे सकता है। बस ये चीज माइक लेके आता हूँ, मैं माइक लेने गया था, जाना नहीं तुमने इधर। काशी यार शुरता भाई प्लीज ना करेंगे, प्लीज आप दोनों भाई ना करें प्लीज। दोनों भाइयों से मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ, अलग से मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के या कोई और ग्रुप बना के वहां बात कर लेंगे, लेकिन ये तमाशा ना बनाए प्लीज। बड़ी मेहरबानी होगी यार आप दोनों की। और एक बात आप दोनों अपने जहन में बिठा लें कि इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की जात है। मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है। मैं अगर आपको बुरा बोलता हूँ तो मेरे बुरा कहने से आप बुरा नहीं हो जाएंगे। बस ये अपने जहन में रखें मेरे भाई। माइक किधर? मैं उस वक्त से खामोश हूँ। अगर नहीं तुमने जाना नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ फिकर। तुम्हें मैंने कह दिया, तुम अपनी माँ का ना एक ही का माँ बाप, एक माँ बाप का ना इधर ही रहना। शाका भाई अब खुद ही उतार दे, वरना चलो शाका भाई तो गए। अच्छा मेरी बात सुन, तू मुरीदों के साथ बिठा के, कादियानियों के साथ बिठा के तू मेरे नबी पाक की गुस्ताखी करवाए, और तू है ही हरामजादा। ना तेरा बाप एक, ना तेरी माँ ने। अपना नाम बता, तेरा बाप कौन है? अपना नाम बता, जल्दी कर, नाम बता जल्दी कर। तेरा बाप एक हो, तेरी माँ ने एक हो तो जल्दी बता दे। अगर तेरी माँ ने एक हो, तेरा बाप एक हो तो बता। हाड़ा सावन के, अबे इतनी देर से तेरी मारी जा रहा हूँ, हिल तो तू रहा नहीं है, तू कह रहा मारी जा मेरी मारी जा। हाड़ा सावन की घाटा। चलो भी चलो, जल्दी करो। अपना नाम बता भी, तेरा बाप नेक है और तेरी माँ एक है, तेरा बाप एक है और तेरी माँ नेक है, तो अपना नाम बता। नाम क्या है तेरा? नाम बता ना। तेरी माँ नेक है, तेरा बाप एक है, नाम बता। नहीं है ना तेरा बाप एक? डॉक्टर तू ले रहा है चस्के, तू मजे ले रहा है, तू सिगरेट पी साइड पे बैठ के बस, और साथ यही कही जा महफिल बर्खास्त होती है, महफिल बर्खास्त। और तेरे अपने बंदे तेरी बात नहीं मानते। बताता हूँ, सबर कर। अबे चल वे, सबर कर। नाम बता अपना, नाम बता, नाम सिर्फ नाम बता, सिर्फ नाम। तेरा नाम क्या है? और मेरे नबी पाक की गुस्ताखी करवाने वालों, मेरे नबी पाक की गुस्ताखी करवाने वालों मुलीदो, मेरे नबी पाक की गुस्ताखी कराने वाले मुलीदो, और मुलीद बात कर, और नबी पाक के बारे में कादियानी गलत बात करें, और तू मुसलमानों का माइक म्यूट करे। और लाखदी लानत तेरी गंदी बुद्धि पे, और लाखदी लानत तेरी गंदी बुद्धि पे, लाखदी लानत। बोली जा, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आवाज ही बंद कर दी, ये मैंने आवाज बंद कर दी अपने मोबाइल की। तेरी आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। बोल ही जा, भौंकी जा। मुझे सिर्फ ये बता कि नबी पाक की गुस्ताखी करने वालों को तो अपनी ब्रॉड पे बिठाए, मुसलमानों का तू माइक म्यूट करे। लखदी लानत तेरे ऊपर। बोलता रहे, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने मोबाइल का जो है ना स्पीकर खोलना पड़ेगा, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया है। चल ये महफिल बर्खास्त होती, लगाऊं वीडियो वही जहाँ तेरे अपने बंदे ही बात नहीं सुन रहे। इंसान को मैं ठीक करने के लिए लो जी, सुनते रहो, मैंने तो हक और सच बात कर दी है।
بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے فالوورز کو یہ جھولیوں میں بٹھاتے ہیں اور اوپر سے یہ ایک ایوز حیدری آ گیا دلہ، یہ کہتا ہے جی میرے سامنے وہ کرے گا تو تب، اور بھائی وہ اپنی براڈوں پہ روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو گستاخ ہیں ان کو تمہارا یہ یار یہ الشرطہ ختم نبوت والا اپنی براڈوں پر بٹھا کر ہیں ان سے گستاخیاں کرواتا ہے۔ اڑا ساون کی گھٹا، آواز میری آتی رہے گی ڈاکٹر، میری آواز تجھے تکلیف دیتی رہے گی ڈاکٹر، میری آواز تجھے تکلیف دے گی، تم لوگ نبی پاک کے لیے۔ میرا نام مرزا محمد دیکھو اجاز بھائی نہیں ہے، محمد اجاز آجا اس ٹورنٹو میں آجا، تیرے کو میں بتاتا ہوں، اتنا تو بنا ہے میرے پاس آجا، تیرے کو بتاتا ہوں میں ابھی تمہیں پتہ بھی دیتا ہوں۔ حرامی بات کرتا ہے میرے سے، نہ تو میرے مہمان کی بے عزتی کر رہا ہے، میرے مہمان کی اتنی بے عزتی کر رہا ہے تو، وعدہ خلافی تو کر رہا ہے۔ تو نے کہا کہ بھائی میں تم سے بات کروں گا جب میں کروں گا، حیدری صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، 15 منٹ سے تم بات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ یہ جو محافظ ہے اس کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ محافظ جو ہے یہ فتنہ پھیلائے گا۔ میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں، وہاں سے میں اس دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں جس نے محافظ کے بارے میں نے کہا تھا، وہ سارے کہتے تھے نہیں 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 وہ خان صاحب ہے، مجھے یاد آ گیا خان صاحب ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں 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 آپ بے فکر ہو جاؤ، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے۔ آگ لگانے والا محافظ اور تم اس کی پشت بنائی کر رہے ہو، تم اصل میں خود قادیانی ہو۔ میں تمہیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا بیٹا، میں نے کبھی زندگی میں ایسی لائف لگائی نہیں، پھر بھی میں نے گستاخی اور بدتمیزی تمہارے ساتھ نہیں کی، لیکن تم اتنے گھٹیا انسان ہو، خاموشی سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، 15 منٹ تم لگاتار بولتے رہے۔ کال 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 گھٹیا انسان، تیرے کو میں نے بولا کہ یار تم حیدری صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں ابھی، جی حیدری صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، حیدری صاحب بھائی تو محافظ جو ہے نا تیری نشاندہی میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ حیدری صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو جی کاکا سپاہی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ شورتا بھائی کیا ہو گیا؟ او بھائی صاحب یہ بندہ اس نے وعدہ کیا کہ بھائی ہم 2 منٹ لیں گے، 2 منٹ آپ بولیں گے، جب میں آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، میں بولوں آپ نہ بولوں، 15 منٹ بولنے نہیں دے رہا، کبھی حیدر صاحب کی بے عزتی کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ یہ محافظ جو ایک بندہ ہے نا سر، اس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بندہ فتنہ پرست ہے۔ خان صاحب اگر اللہ کرے کہ وہ دبئی کے رہنے والے ہیں وہ آ جائیں، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یار وہ بھائی ہمارا اپنا مسلمان ہے، آج یہ میرے اوپر گستاخی کا الزام لگا رہا ہے کہ جی میں آپ ساتھ میں، او بھائی سب سے پہلے تو شاہ صاحب کو منع کرو، وہ جو شاہ صاحب ہیں وہ اتنے ڈبیٹس کرتے ہیں وہاں جا کے، وہاں وہ مرزا قادیانیوں کو صلاۃ السلام بول رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، پہلے تو ان کو منع کرو جا کے۔ پھر جناب یہ جاوید مفتی صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے سر۔ یہ اس طریقے سے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور میرا امیج ڈراپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، بے عزتی اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ محافظ جو ہے نا سر، یہ بڑے فتنہ پرست بندہ ہے جی۔ اور ڈاکٹر ذاکر، ڈاکٹر ذکریہ اور ڈاکٹر ذکریہ تو اپنی ماں چدا جدھر جانا تو نے، لیکن یہ کتے کی پڑا جب بھوکنی، ٹھیک ہے یہ وہ بات کر رہے ہیں، تو ذکریہ تیرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، خسریا اور ڈنگر ڈاکٹر معذرت میری کال آ گئی تھی، آپس دا معاملہ ہوئے کھوتی اور دا بچہ ڈاکٹر کی گل ذکریہ اور کنجری مار دیا بچیا، تو دفع ہوئے تو کی چلیں لڑنے ہیں سر ادھر ڈائیورٹ نہ کریں سر، میں آپ کو یہ بتانا نہیں، وہ چاہ رہا میری کال آ گئی تھی، میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں، میری کال آ گئی تھی، میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔ بات سنیں، اور نہیں تو بھاگنا نہیں ہے، تم نے تمہاری کال آ گئی تھی جہاں مرضی تم نے جانا، دیکھا تو بھاگ گیا۔ اپنی ایک ماں باپ کا بیٹا ہے، واپس آ اور اصول سے طے بات کر۔ تمہارے میں تو اتنی بات نہیں ہے کہ تم ایک مسلمان ہو اور ایک وعدہ کر کے تمہیں وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ حیدری صاحب موجود ہے، حیدری صاحب نے درمیان میں بات کی، میں نے چپ کر کے 15 منٹ تمہاری بات سنی۔
लेकिन तुम बात ही अगले को बात ही नहीं करने दे रहे हो, बच्चों की तरह जाहिल आदमी फफे कुटनी औरतों की तरह कभी कर रहे हो। हाँ लेता हूँ तुम्हें, किधर है? हाँ। शुरता भाई, शुरता भाई नहीं सर, आप माफी। देखें सर, 15 मिनट से ये बोल रहे हैं। हैदरी साहब आप अनम्यूट शुरता भाई खुदा दा ना ओ नहीं आज काशफ भाई नहीं, भी अपने भाई है। आज तो ओ कसम से डॉक्टर मेरे को गाली भी आई है ना, तो आज मैं गाली भी बकूंगा। इसने मुझे अभी गाली निकाली, खुदा की कसम, मैं हटने नहीं वाला अभी। मैं वो हाल करूंगा इसका। लेता हूँ तेरे को काल, तेरे को पहले मैं बात बता रहा हूँ, तू अपनी एक माँ बाप की औलाद है ना, तो आज मैं भी इस पूरा दिन इधर बैठा हूँ। तुम अपनी एक माँ बाप का बेटा ना बेटा, तो मैं तेरे को, तू जा निकल निकल, तू एक माँ बाप का होगा तो इधर बैठा रहेगा। तू अगर एक माँ बाप का नहीं आगा तो यहाँ से भागेगा कुत्ते, तेरे को मैं बता रहा हूँ। तू मेरे मेहमान की भी बदतमीजी करी, कुत्ते इंसान, घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मजहब कार्ड खेल रहे हो। बात तो सिर्फ इतनी हुई है कि उस इंसान को नीचे गिरा दिया। क्या वो कोई बहुत बड़ा बरगजीदा शख्सियत है मुहावत कि उसको नीचे नहीं गिरा सकते? वो गलती नहीं कर सकता? जाहिल इंसान, कितने बड़े घटिया इंसान हो तुम। हम कादियानियों से लड़ लड़ के पागल हो रहे हैं, उधर मसीहों से लड़ लड़ के पागल हो रहे हैं, ये बंगाली हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जी काका सफाई साहब। हैदरी साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, हैदरी साहब प्लीज जरा आप अनम्यूट करें। वो मेरा ख्याल में वो बेचारे डिसहार्ट हो गए। इतनी अफसोस की बात है। जी काका सफाई साहब। एक और वो तो थल्ले मैं क्या ये हैदरी भाई बोल नहीं रहे। डॉक्टर ज़करिया और डॉक्टर ज़करिया चल अपने छोले किते और बेच, पक्की जी दुकान तू किते और सर जी जाके ये लगा। सर पॉइंट पे रहे सर। ये जो मुहाफिज है ना सर, जी ये जो मुहाफिज है, इसने, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मुहाफिज है ये फितना परस्त बंदा है। जी मैं लेता हूँ इब्ने आदम साहब, कहाँ हैं आप? जी मैंने अभी भी सर कोई गाली नहीं निकाली। इतनी मेरे साथ बेइज्जती और बेइज्जती हो रही है, और अस्सलाम कोई भी वालेकुम। मुसलमान यहाँ पे कोई भी मात के लिए आ नहीं रहा। शुरता कितने, मेरी एक बात शुरता ध्यान में रख लीजिए सर, कि रोजे शुरता क़यामत आप लोग, नहीं इब्ने आदम साहब एक बात कर लें, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। रोजे क़यामत आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैंने यहाँ पे 1.5 साल सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपनी सच्चाई से, मोहब्बत से अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया। और अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप हक को जानते हुए भी खामोश रहें तो आप गुंगे शैतान हैं। तो आप सब मुसलमान मुझे जानते हैं कि मैंने कभी कोई गुस्ताखी नहीं की, और इनकी हमेशा मैंने पकड़ की है, कादियानियों की और मसीहियों की। और अगर आप आज नहीं बोलेंगे ना तो आप सब लोग गूंगे शैतान हैं। आपको ये गवाही देनी चाहिए कि मैं कभी कोई गुस्ताखी नहीं की मैंने। शुरता आप ये खामोशी से नहीं सुन सकते इस तरीके से। शुरता आवाज आ रही है? जी सर। यार छोटा भाई है ना? जी भाई। मेरी जान जो भी हुआ ना, अभी अगर आपको गाली देनी है मुझे गाली दे लो, ठीक है, लेकिन प्लीज अभी मेरी बात सुनो, बिल्कुल कूल हो जाओ, इस टॉपिक को इधर ख़त्म कर दो। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है, ये बात किधर और कर लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी है, छोटे भाई की हैसियत से आपको बोल रहा हूँ। मुझे छोटा देखो जिद नहीं करते, छोटा देखो तेरे को ऊपर लेने वाला। यार छोड़ दो ना, छोड़ दो प्लीज, जिद नहीं करते, छोटे भाई हो तो इधर ही रहना यार, आप छोटे भाई हो प्लीज। सर किसी ने बात कर, इब्ने आदम साहब सुनिए जरा, मैं बड़े तहम्मुल से अब बात, मेरी जान मैंने सारी सुनी है, बोल रहा हूँ ना, मैंने सारी सुनी है। सुने, अगर किसी इंसान को मसले को हल करना है ना तो वो तरीके से आगे बात करता है, कहता है चले ठीक है सर आप बात करें मैं करता हूँ, हम दोनों में कोई प्रॉब्लम है हम हल कर लेते हैं। ये उसको कर लेंगे। आप बदतमीजी पे लगे, तुम पे लाना, हैदरी तुम पे लादम, राफती, ये वो यार शुरता मैंने सारी सुनी है, ठीक है ना? इंशाल्लाह मैं आपकी, इंशाल्लाह मैं मना करो, पीर अस्कानी को मना करो। भाई हेलो शुरता और बंदों को बीच में नहीं लाओ, जो बात हो रही है सिर्फ उसकी बात करते हैं ना मेरी जान। नहीं भाई,
وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار ابن آدم دیکھو صاحب وہ بھائی یہ بھی کہہ رہا کہتے ہو یار اس کو چھوڑو, یہ کمنٹ نیچے سارے جو ہے نا کر دو, ان کو بلاک کرو کمنٹس کو, ٹھیک ہے نا. میں چھوٹے بھائی ہو پلیز میری بات ابن سن لو ابھی. ابن آدم صاحب مجھے یار دیکھو ایک ابھی آپ بات تو, غصے میں ہو, میں آپ سے پیار سے دیکھو بات کر رہا ہوں یار, چلیں بات تو کریں یار, ایک منٹ میں آپ سے پیار سے میری بات کر جان رہا میں ہوں, کر رہا ہوں بات, کول میں ڈاؤن آپ سے کریں نا. بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ لانتی ڈیش ڈیش مرزا غلام احمد ڈیش ڈیش کرتا ہے, یعنی کہ وہ اوپر سے سلاد پڑھتا ہے, تو یہ تو شاہ صاحب کے سامنے بھی وہ پڑھتے ہیں, یہ مفتی جوید صاحب کے سامنے بھی پڑھتے ہیں, تو میں دیکھو کہاں آپ کا مقدمہ, میری بات سنو, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن مفتی جوید صاحب کی تو اوقات ہے نا, انہوں نے بھی سنا ہے. ہم مل بیٹھ کے ایک جگہ پہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے, لیکن ابھی بروڈ پہ اس بات کو ختم کر دو, ٹھیک ہے. جی 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 ایک نہیں بڑے نہیں بھائی سر کی میں حیثیت سے عزت ذلت مانتا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہوں. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا, کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. نہیں بھائی آپ کس طریقے سے کسی کے ساتھ بدتمیزی کروا رہے ہیں یار, آپ السلام علیکم. گالیاں پہ گالی نکال رہے ہیں. جی شاکر وعلیکم بھائی, السلام. شاکر بھائی, اعوذ باللہ شاکر من بھائی. الشیطان الرجیم جی اور لا حول ولا قوت الا باللہ. شرطا بھائی ہاں اب آپ کنٹرول میں ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یعنی یار نہیں میرے شرطا بھائی, میں مانتا ہوں واقعی انسان جذباتی ہو جاتا ہے, آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, آپ بہت نفیس انسان ہیں, آپ سے میں نے کبھی ایسی کوئی غلط بات نہیں سنی, اور نہ اتنا آپ کبھی اتنا جذباتی ہوئے, لیکن ہو جاتا ہے انسان کو غصہ آ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے شرطا بھائی, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان منافقوں کے لیے ان کو صحیح جواب دے رہے ہیں اپنے طریقے سے, تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ آپ اس پہ قائم رہتے ہو اپنے اس صبر اور اس وہ جو آپ کی تربیت ہے, تو پلیز اس کو مد نظر رکھ کے نا اپنے آپ کو کنٹرول کریں. نہیں سر, تو میں اس کو جانے نہیں میں دینا, آپ کی آپ جو بڑی مرضی کر رسپیکٹ لو. کرتا ہوں شرطا بھائی, میں بہت میں اس رسپیکٹ بندے کرتا کو ہوں. آج وہ اس کو نہیں کہوں نہیں گا کہ آپ تو ایسا نہ کریں نا دیکھیں شرطا بھائی, پلیز ایسے نہ دیکھیں کریں. شاکر بھائی, ایک مسلمان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. سورہ مومنون ہے, اس کے بالکل اندر بالکل, لکھا ہوا ہے. بے یہ شک بندے کوئی سے شک بات نہیں. ہوئی کہ بھائی میں حضری صاحب نے کہا اچھا کون پہلے بات کرے گا, میں نے کہا جی سیکر کرے. یار 15-20 منٹ سے چپ ہی نہیں ہو رہا, بالکل, تو یہ نہیں چلیں بدماشی گے ہے شرطا کیا ہے, بھائی. شرطا اور کہہ بھائی, رہا ہے کہ میں بات نہیں کرنے دے رہا ہوں. اور چھوٹا آپ بھائی سب وہ لوگ ڈاکٹر دیکھ بھی رہے زکریا ہیں. بات کرنا چاہ رہا نہیں ہے, یار ایک ڈاکٹر منٹ یار, زکریا کو کال پہ لے آپ لو ایک سب لوگ منٹ کے دیکھ لیے. بھی رہے ہیں, اور آپ آ کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ غلط بندہ ہے, وہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا. چھوٹا بھائی آپ ماڈریٹر سب کو لوگ بولیں گے گونگے کہ شیطان ڈاکٹر بنے ہوئے زکریا ہیں. کو اوپر لے شرطا لو, شرطا آپ کو دیکھیں شرطا شرطا بھائی, میں آپ سے, گونگے رشتہ دار کی نہیں ہے بات, ہے دو بھائیوں کی. جب دو بھائی لڑ جائیں نا تو پھر ان دونوں کو پکڑ کے نہیں مارا جا سکتا, یا ایک کو الگ سے نہیں مارا جا سکتا, ڈاکٹر دونوں سے نہیں زکریا رشتہ کی بھائی وہ کال ویسا لو آپ ہے. غلط شرطا کو بھائی, غلط اس کو کہہ بہت سکتے ہیں. تکلیف ہو رہی ہاں ہے. بالکل, غلط کو غلط کہہ نہیں سکتے نہیں نہیں ہیں, نہیں نہیں, اور کال دیکھیں کی آپ نہیں کو لینی. خاموش کاکس کرنے بھائی کا پلیز مطلب یار. یہ ہے شرطا بھائی نہیں کہ نہیں نہیں آپ میں میں اس نے کو اس کو طبیعت لینا ہے صاف سر کرتا جی, ہوں نا میں نے ڈاکٹر اس کو زکریا لینا کی, ہے, اس کو ٹینشن بہت نہ لیں, تکلیف ہو, میرے اس بات شیطان کی ماننی اولاد ہے نہیں نا ہے. مرزا خنزیر کی طرح کا, او کذاب نہیں زندگی جو ہے وہ, ہاں وہ پنگے لے رہا ہے نا, شرطا بھائی کو تنگ کر رہا ہے, وہ کتے کا بچہ مرزا خنزیر کی وہ اولاد. چھوڑیں سر, اس کو میں یہ لوگ کسی تو ہیں ہی سالے بات سے نہیں لاچار لیتا. اور مجبور ہیں, یہ ہے نا. ہاں میں وہی نے کہہ رہا ہوں صرف نا, اور اس کو صرف ذرا اس سیکر کی سے طبیعت تو میرا ابھی خیال ہے. آپ ٹھہریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں شاکا بھائی آپ ادھر موجود ہوں گے, جی جی اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ادھر موجود ہوں گے. جی, اب اس نے 15 منٹ لیے, اب میں بولوں گا یہ خاموش رہے گا, ٹھیک ہے, یار. میں عزت کے دائرے میں رہوں گا, میں لیکن نے چھوڑنا شرطا نہیں ہے. بھائی, میرے نظر میں جو آپ کا امیج بنا ہوا ہے نا, بس وہ قائم رکھیے گا پلیز. سامنے والا چاہے کچھ بالکل بھی کرے, لیکن آپ اپنا امیج خراب نہیں کریے گا, بس جو ہے ٹھیک ہے آپ کا امیج وہ ٹھیک بنا رکھیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک جی, ہے یہ لے لیا اس کو اوپر. اب اس سے بات کر لیجئے گا کہ جب میں بولوں تو یہ نہ انٹرپٹ کریں ان سے بات. شاکر یار. لو سیکر بھائی کیا ہو گیا یار, شاکا بھائی میں تو چپ ہو گیا تھا آپ نے بولا تو. بالکل. تو کاشی یار, کاشی بھائی ایک تو آپ کے نام بھی اتنے ہیں نا یار. جی تو شاکر کاشف بھائی اب میں بول رہا ہوں. بالکل. جی بھائی میرا نام محمد اعجاز ہے, میں سائیوال کا رہنے والا ہوں, اور میں ٹورانٹو میں نارتھ یارک میں رہتا ہوں. اگر آپ کا دل کرتا ہے نا آپ ٹورانٹو میں یا کینیڈا میں ہیں تو میں آپ کو فیس بھی کرنے کے لیے ریڈی ہوں, جب آپ کا دل کرے, جس مرضی جہاں پہ بھی, ٹائم بھی آپ کا, وقت بھی آپ کا, جگہ بھی آپ کی, آؤں گا. ٹھیک ہے, چپ کر جائیں پہلے. میں نے آپ سے کہا ہے, شاکا بھائی نے کہا میں شاکا بولوں بھائی گا. ٹائم نوٹ کرتے رہیے گا کتنا لمبا بولتے ہیں. سر آپ نے 15-20 منٹ اپنا خطاب کیا ہے, وہ پوری یار دنیا نے کاشف دیکھا. بھائی, کر رہا تھا کاشف بھائی, بھائی پہلے کوشچن سن آنسرز لینا, کر رہا تھا میں. نہیں سنیں چھوڑے تو آپ. بات تو سن لینا پوری. آپ وہ جی بندہ شاکا اپنی بھائی, گواہی دے رہا ہے, تو جی آپ. شاکا بھائی, ہاں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے میں کوئی گستاخی کروا رہا ہوں اور گستاخی کر بھی رہا ہوں.
ये इनके अल्फाज थे वहां पे। और मेरी माँ बहन को कह रहे थे कि आप उनको अपनी माँ बहन दे दो कादियानियों, अच्छा कभी उनकी माँ दे दो कभी बहन दे दो। तो ये मैंने खामोशी से इसको सब्र से सुन भी लिया। मैंने कहा कि भाई मुझे पहले बताया जाए कि ऐसे, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि वो मुहाफिज था। खान साहब एक आईडी हैं, वो दुबई के रहने वाले, मैंने उनसे कहा था कि ये तकरीबकार लगता है। मैं यहाँ पे डिबेट करी एक दफा, पहले डिबेट की मैंने, उस पे हमने ताबड़तोड़ कादियानियों पे बड़े जबरदस्त हमने अच्छा मुनाजरा किया। ये भाई आए, कहते यार आपको इल्म ही नहीं है तो क्यों बात करते हैं। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हमने अच्छे तरीके से डिबेट की है, आप क्या कह रहे हैं कि हमने हारे हैं या कोई बात की है। ओ नहीं 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 जी, ये तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कोई मुफ्ती होना चाहिए। मैंने वहीं से खटक की, मैंने तमाम दोस्तों को कहा कि ये मुहाफिज जो है ना, इससे जरा बच के रहिए। वो मुझे खान साहब ने कहा और नहीं नहीं यार हमारा अपना बंदा है, मुसलमान भाई है यार। मैंने कहा अच्छा चलिए आपकी बात मानता हूँ, चले मैं चुप कर जाता। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि ये एक लाइव पे, आप मेरी लाइव पे आए तो मुहाफिज साहब ऊपर बैठे हुए थे, हम कादियानियों से डिबेट कर रहे थे। ये जनाब साहब ऊपर आ गए। अब मैंने देखा कि यार मुसलमान भाई है, ऊपर ले लूं, चलो मैं हमेशा ले लिया करता हूँ, आपको भी पता है कि मैं बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता लाइफ जी में। बिल्कुल तो जी मैंने वहां पे बात कर रहा हूँ, ये बंदा गाली निकाल रहा, उनको सीधा ही तुम्हारी माँ की हो तो तुम्हारी बहन की। वो मैंने कहा एक मिनट यार मुहाफिज भाई, आप, मैं पहले म्यूट करता हूँ, एक दो दफा म्यूट किया मैंने कहा यार मुहाफिज भाई हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी जरा रुक जाए। तो जब ये रुकने के नाम नहीं ले रहे थे तो फिर मैंने इनको जबरदस्ती नीचे गिराया। तो ये जब ये नीचे गिराया तो मैं तो इस वाक्य को भूल गया हूँ कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज ये लाइव पे चले गए वहां पे, तो इन्होंने होली स्पिरिट साहब से ये सवाल पूछा कि जी आप ये बताएं कि अगर कोई एक बंदा जो है गुस्ताखी कर रहा हो, और गुस्ताखी क्या कर रहे हैं आपने खुद सुना है कि वो अपने मिर्जे को डैश 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 बोल रहा है, ठीक है जी, ये जी बोल रहा है, ठीक है जी, ये जी कहूंगा कि भाई जब सैफी साहब से बात होती है कादियानी, तो वो तो 10,000 दफा शाह साहब के सामने बोलता है मिर्जा डैश डैश डैश, ठीक है जी। उधर तो आप कह नहीं रहे, मेरे ऊपर आपके लड़ाई जंग आ रही है, पता नहीं क्या वजह हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा उसके बाद यहाँ पे उन्होंने होली स्पिरिट से बात की। शाका भाई आधा घंटा लगेगा, मैं सोने लगा हूँ, फिर उठा देना मुझे, मेरी बारी आए तो। अब भाई मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, अब आपने इंटरप्ट यार काशिफ भाई ये ऐसे ना करें ना, देखें एक 8 बंदा मिनट तो हो गए शाका भाई, 8 मिनट तो हो इन्नल्लाह गए। मा साबरीन के ऊपर अमल कर लें बस, इन्नल्लाह मा साबरीन, भाई अल्लाह बात सब्र पूरा करने मुद्दा वालों बयान करूंगा तो उनको समझ में आएगी ना, ऐसे तो नहीं कि अब। अच्छा उन्होंने होली स्पिरिट से ये सवाल किया कि इन्होंने रंग दे दिया गुस्ताखी का, हालांकि मैंने इंसाफ का, आपको पता है शाका साहब मैं 1.5 साल से लाइव कर रहा हूँ, आप मुझे 1.5 साल से जानते हैं। कोई भी बंदा मेरा मुसलमान भाई भी होगा ना, चाहे वो मुफ्ती हो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अदाब गुफ्तगू से गिरेंगे तो फौरन आप मैं नीचे गिरा दूंगा। 2-3 दफा 4 दफा वार्निंग दे के, या कोई ज्यादा करीब है तो 10 दफा दे दूं, उसके बाद अगर आप नहीं मानेंगे तो गिरा दूं। और कोई वजह नहीं थी। इन्होंने सवाल किया होली स्पिरिट से कि जी ऐसे एक बंदा गुस्ताखी कर रहा हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा हो, तो एक जो मुसलमान भाई है वो कादियानी को ऊपर ही बैठाए और अपने मुसलमान को नीचे गिरा दे। तो अब ये रंग, तो सवाल तो ऐसा था कि वाकई ये, मैं भी कहता हूँ कि अगर कोई शान रसूल आ जाए तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन फिर इन्होंने इन्होंने फिर वो होली स्पिरिट साहब ने भी कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, मुसलमान पे भी लानत है उस तरह। तो इन्होंने फिर, मैंने कहा पता नहीं किसके बारे में बात हो रही, तो इन्होंने कहा ये शुरता साहब हैं जी। उन्होंने पूरा अपना मुद्दा बयान कर दिया। मैंने कहा किधर नु लैन चलेगी है, केड़ी साइड तक बात चलेगी। उसके बाद इन्होंने, मैंने अपना मुद्दा रखा, मुफ्ती साहब भी वहां से चले गए क्योंकि ये मुफ्ती साहब के ऊपर भी लानत भेज रहे थे, या पता नहीं बुरा भला कह रहे थे, या झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुफ्ती साहब नमाज पढ़ने गए थे, नीचे लिखा हुआ था उन्होंने। चलें, हाँ चलें, यानी चले गए, नमाज पढ़ने गए वो। चले गए, चले ठीक है। यहाँ पे लानत नहीं भेजी, ये भी मैंने- झूठ बोला है इन्होंने। मेरे पास रिकॉर्डिंग चलिए मौजूद ठीक है, है, शाका भाई आपको भेज दूंगा। मैंने कहा लानत नहीं भेजी होगी, अलबत्ता डिसएग्री थे उनके साथ, ठीक है। इख्तिलाफ राय जरूर किया था। अब आप इस झूठ पर चलिए, माफी मांगेंगे अच्छा अल्लाह रुक से, जाए, जो मुझ पे बांधा आपने। जी मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, आपसे माफी कभी जिंदगी में नहीं मांगूंगा, अल्फाज वापस लेता हाँ शुरता भाई एक रिक्वेस्ट है, हूँ। ये नीचे कमेंट म्यूट कर। कौन एक नाम प्लीज बता दीजिए।
सर जी एक मिनट सारे बात कमेंट होने दीजिए। सारे कमेंट ही ऑफ पता है कर वो दो बात शुरता बात में डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, सारे कमेंट म्यूट करो आप, सारे मैं कमेंट म्यूट सारे करो। कर देता हूँ, चलें कादियानी ठीक है, खंजीर जो सारे है कर लड़ाई देता कराने के बस चक्कर में ठीक है। कमेंट ऑफ कर दो प्लीज। हूँ, मैं सारे ऑफ करता हूँ सर, एक जी दो शुरता, थैंक यू जी। जी सर, जी सर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने होली स्पिरिट को बताया, होली स्पिरिट ने डेफिनेटली एक आम मुसलमान, बल्कि यही सवाल मुझे होता तो मैं भी ये कहता कि उस मुसलमान पे ही लानत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सुन रहा है और बैठा है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही मैं है। भी कह रहा हूँ। तो होली स्पिरिट साहब ने वो जवाब सही दिया। इन्होंने कहा कि जी शुरता साहब ने फला पूरी अपना जो मैंने आपको बताया डिबेट की तरह वो सारा वाकया बयान किया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम शुरता साहब का भी मौकफ लेते। ये दोनों इंटरप्ट कर रहे थे, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा अच्छा भाई, इन्होंने मुझे गालियां निकाली, इन्होंने मुझे कहा फलां फलां अपनी बहन दे दो, कादियानी को अपनी माँ दे दो, फलां दे दो, ये दे दो। और मेरी वालदा फौत हो चुकी है, आपको भी पता है, उनको भी ये मतलब माँ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, गलत कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, फिर चले माफी मांगे। बहन चले चले भाई, अच्छा चले ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक दो मुफ्ती साहब से भी बात, मुफ्ती साहब ने बड़े प्यार से एक उनका मौकफ सुना, मेरा सुना। उन्होंने कहा कि अगर शुरता साहब ने ऐसे किया है तो वो अपने मौकफ में भी ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि डिबेट में अगर वो कर रहा है तो वो तो डेफिनेटली उसके लिए करता है। तो ये हैदरी साहब से भी वही बात हो रही है, हैदरी साहब ने भी यही बात की कि भाई वो उनके जब डिबेट करते हैं तो वो तो अपने आप को इस तरीके से कहेंगे। उसके बाद इन्होंने, मैंने इन्हें कहा कि आप मेरी लाइव पे आ जाए। लाइव के बाद अगला हवाल आपके साथ है। आपने देखा झूठ है कि बोल ये रहे हैं, 15 पूरी बात बताएं। जो जो आपने क्या, झूठ बोलने, 3 झूठ बोल चुके हैं अब तक आप। और भाई आप तो अनलिमिटेड बोल गए हो। चलो मैंने तो यही सुना है। बहरहाल चलें, अगर आपने माँ की नहीं निकाली, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, ठीक है। और जो लेकिन मुफ्ती आपने साहब पे बहन का गलत क्या, इल्जाम लगाया उसकी भी माफी मांगे। ओ भाई अल्फा कह तो दिया, क्या बच्चों की तरह हो गए हो यार। मैंने कह तो दिया कि भाई अगर कोई ऐसे अगर यार काशी भाई मुफ्ती वो कह साहब रहे हैं ना, नमाज मैं वो पढ़ने के अल्फाज लिए वापस गए थे, लेता हूँ जो अगर गलत वो निकल गए तो, शाका भाई, लेकिन अगर इनके मुफ्ती साहब अल्फाज ने सुनने लिखा, दीजिएगा। जी मुफ्ती साहब ने अगर लिखा ऐसा तो ठीक है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप शाका भाई इनसे ये सवाल जो है आप इनसे पूछ लीजिए कि आया कि ये मेरी लाइव है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जाओ तुम्हारा जो दिल करता है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा, तुम्हारे जो उखाड़ सकते हो तुम उखाड़ लो, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, बिल्कुल अपने शुरता तरीके भाई से यहाँ कोई करूंगा। किसी का कुछ नहीं तुम्हें कर सकता। गुस्ताखी नजर आती, मेरा लास्ट फाइनल मैसेज है जी सर, जी ना तो मैं तुम्हारे किसी बाप से डरता हूँ, मैं एक कैनेडियन सिटीजन हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बाप की जुर्रत नहीं हो सकती मुझे यहाँ पे कुछ तुम कर सको, चाहे जहां पे भी हो। मैं अपनी लाइफ ना, मैं कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करी है, ना कभी बर्दाश्त अभी करूंगा। अभी आपने, अब मेरा मुझे फाइनल इजाजत दें जरा मैसेज सुन बात ले, करने की। मेरा फाइनल मैसेज सुन ले, उसके बाद आप ही बोलेंगे। से तो बोल रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, अब आप सच सच बोल रहे हैं ना। मैं मैं क्यों 20 बुलाया? मिनट अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी थी तो मुझे बुलाया भाई क्यों आप है? अपनी और तो फाइनल भाई बात पूरी आप करें। आपने 20 काशी मिनट भाई तो आप है पहले ना गाया आधा भाई भाई, घंटा ले 20 लीजिए। मिनट हो गए यार, क्या करते हैं यार आप? काशी मेरा भाई आप फाइनल आधा मैसेज घंटा सुन ले लेना, लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मेरा लेकिन फाइनल मैसेज सुन के आप ही बोलेंगे, बस एक दो लाइनें रह गई। मेरी लाइव है भाई, मैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे मुसलमान मुझे फॉलो करते हैं, देखते भी हैं। कोई एक इंसान मुझे आगे बता दे कि आपने गुस्ताखी की है। अगर आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे के होते हुए कोई काफर और एक मुसलमान आपस में डिबेट कर रहा है, और एक मुसलमान अगर ज्यादती कर रहा है उसको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा, आपकी तरह जिस तरह 20 मिनट आप बार बार किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं आई हैव अ राइट टू सेट यू डाउन, तो मैं आपको नीचे जरूर भेजूंगा। ये मेरी असूल है और मैं इस असूल पे रहूंगा। अगर कोई गुस्ताखी के अलावा कोई बात होगी तो मैं वहां इंसाफ पे बात करूंगा। अब आप बात कर लें शाका भाई, आपकी तरफ है। जी बिल्कुल। अच्छा काशिफ भाई एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, देखिए हर ब्रॉड का अपना अपना उसूल होता है, हर बंदे का, वो उसका हक है, ठीक है, वो जिसको चाहे नीचे उतारे। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि अब मिसाल के तौर पे एक ब्रॉड ज्यादा लंबी चल रही है, काफी लोग बैठे हुए हैं वहां पे, मैं आपको जानता हूं, मुझे शुरता भाई ने धड़ करके नीचे उतार दिया कुछ बोलने पे, मैं इसको फील करूंगा मेरी बेइज्जती हो गई, मैं फिर इस्लाम और अपने दीन और अपने मकसद को भूल के अपनी आना के चक्कर में पड़ जाऊंगा कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे उतारने की। तो सबका अपना अपना एक रूल होता है लाइफ का, कोई होता है कि हाँ जी आप इस लाइफ पे गालियां बक सकते हैं, सिर्फ एक गालियों की लाइफ चलती है, एक हदीसों की चलती है, एक नातों की चलती है, हर तरह के हिसाब से अपने अपनी लाइफ चला रहा होता है जो बंदा होता है। तो अब उसमें जो है ना हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम किसी और के घर में जाके हम अपनी मर्जी से बोलें कि नहीं यार ये सोफा इधर से उठा के उधर रखो फिर मैं बैठूंगा। तो बस ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हमें समझना चाहिए आपस में एक दूसरे को, एक दूसरे मुसलमान भाइयों की ना।
तो ये इजाजत है आप मुझे बोलने की, या आप भी उतना ही बोलेंगे? काशिफ भाई अब आप बोलें, आप क्योंकि बोलें। आप अभी उनके साथी बन के आए ना, एडमिन है ना आप इस ग्रुप के, तो जरा आपने साथ तो उनका ही देना। मेरी बात नहीं यार, मैं काशिफ भाई सुनिएगा ना, मुझे तो बोलने देना। चलें आप बोलें यार, आप मैं सिर्फ आप दोनों की सुनने तो नहीं आया ना, मैं अपनी भी बात करने नहीं, आया। आप करें, बिल्कुल इजाजत है सर। सबसे पहली बात ये कि जो बात शुरू हुई थी, मैं थोड़ा सा सुना दूं लोगों को, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में मुझे इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी लगाना है। ये जो साहब अल-शुरता वाली आईडी से अपना नाम इजाज बता रहे हैं, साहिवाल मंटगोमरी का रहने वाला बता रहे हैं अपने आप को, ये साहब जो हैं कादियानियों और मुल्हिदों के लिए अपने अंदर, अपने दिल में एक नरम रवैया रखते हैं। इनको पिछले 6 महीने, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा से, मैं देखता हूँ इनकी ब्रॉड ऑन होती है। अक्सर देखा गया कि ये कादियानियों और मुल्हिदों को अपनी ब्रॉड पर बिठाकर उनसे गुस्ताखियाँ करवाते हैं। बेसिकली ये उनको ये तो नहीं कहते कि तुम गुस्ताखी करो, लेकिन एक मुसलमान को, एक कादियानी या मुल्हिद को अपनी ब्रॉड पर बिठाकर मुकम्मल तौर पर इजाज़त देना कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबाए कराम के बारे में, अंबियाए कराम के बारे में अपनी ज़बान दराज करे, और इस बात का पता भी हो आपको कि कादियानी जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालते हैं। ये एक बार नहीं हुआ, इनकी तकरीबन हर ब्रॉड पर ऐसा होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये साहब अपनी बात करने के अंदाज से स्लो बोलते हैं या बहुत आराम से बात करते हैं, वो ये भी जान लें कि ये कादियानियों और मुल्हिदीन के लिए एक नरम रवैया रखते हैं। इनको इस बात पर ये कहा गया कि भाई आप मुसलमान हैं, हम आपकी ब्रॉड पर जब आते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि एक कादियानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़बान दराज करे और ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगवाए जो मुल्हिदीन लगाते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इनको वहाँ पर ही रोका करें जहाँ पर ये गलत बात कर रहे हों। अच्छा, बजाय इसके कि ये वहाँ पर उसको रोकते, इन्होंने एक मुसलमान साथी को, जिसने उस बात को, जो उस गुस्ताखी है उसको वहीं रोकने की कोशिश की, उसको कॉल से नीचे उतार दिया और उस कादियानी को कहा कि आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, यानी जो वो गुस्ताखी कर रहा था आप अपनी उस गुस्ताखी को कंटिन्यू रखें। बेसिकली हमारा ये मकसद था इनको बताना कि आप कादियानियों और मुल्हिदों को अपनी ब्रॉड पर बिठाकर उनसे गुस्ताखियां ना करवाया करें। वो आप नहीं उनको कहते कि गुस्ताखी करें, वो आते ही अपना मौक़िफ़ देने के लिए हैं, लेकिन आप उनको अपना प्लेटफॉर्म इसलिए ना दें कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए कराम के बारे में ऐसी गलत बात कर सकें। हर मुसलमान का खून खौलता है, ये दीन का मसला है, ये कोई ज़ाती मसला नहीं है। दूसरी बात, शुरता साहब को ये जो अपना नाम इजाज बताते हैं, साहिवाल के रहने वाले हैं, कैनेडियन पासपोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, और इन्होंने अपनी आखिरी बात में ये कहा कि जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जैसे ब्रॉड कर रहा हूँ मैं वैसे ही करता रहूँगा। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि ये कादियानियों को और मुल्हिदों को अपनी ब्रॉड पर बिठाकर गुस्ताखियाँ करवाते रहेंगे। ये इन्होंने अलल-ऐलान ये बात कही है। मैं दीन की खातिर बात कर रहा हूँ, मैंने दीन की खातिर बात की। हाँ, जहाँ तक इन्होंने ये बात की कि मैंने इनको कहा कि देखें, मना करने के बावजूद, समझा देने के बावजूद इन्होंने कादियानियों के बारे में कहा कि मैं इनको अपनी ब्रॉड्स पे बिठाऊंगा, तो मैंने इखलाकन, ये बद इखलाकी नहीं है, मैंने इखलाकन ये कहा कि अगर आपको इतनी मोहब्बत जाग रही है, इतना प्यार जाग रहा है उनसे, तो आप अपनी सिस्टर का रिश्ता उनको क्यों नहीं दे देते? अब सिस्टर का रिश्ता देना ये एक हक। मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं आप। चलें भाई, नीचे चलें। आप क्या यार, शाका भाई मेरी फिर दोबारा बेइज्जती करवा रहे हैं। भाई मैं अवे हो गया था, माजरत चाहता हूँ, मैंने तो सुनी भी नहीं बातें। यार आप क्या कर रहे हैं यार? फिर आप क्या, किस लिए मुनसिफ बने हो? नहीं, मैं मुनसिफ नहीं बना हुआ, मैं भाई बन के बात कर रहा हूं। बदतरीन इंसान है ये नहीं शुरता भाई, मुझे ये ओहदे नहीं चाहिए ना, मुनसिफ और ये सारी। मैं एक नॉर्मल आम मुसलमान। यार आप बैठे हैं तो फिर इंसाफ से काम लेना यार भाई। के भाई आप क्या कर रहे हैं? ये कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा तो शुरता भाई इनके बात पास करने सबूत की है। बात देखें सुनिए ना शाका भाई, एक मिनट। शुरता भाई यहाँ पे कुछ बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम सर एक मिनट, सिर्फ मैं ये कहना, हैदर साहब आपकी तरफ आता हूँ सिर्फ।
शाका भाई, अगर आपको मैंने ये बताया कि ये बंदा मजहबी रंग दे रहा है, इनके पास सबूत है तो मेरे पास रूल ट्रोल लगाएं कि मैंने उस बंदे को कादियानी को गुस्ताखी करवा रहा था। मैंने तो इसको इंटरप्ट करने के लिए कह रहा था कि भाई, और तुम ना इंटरप्ट करो ना करो, उस वजह से उतारा। ये बंदा कह रहा है मैंने गुस्ताखी उनकी करवा रहा था। सही है शुरता भाई, सारी बात आपकी सही है, लेकिन बात खत्म होने के बाद जी बंदा हैदरी साहब को जरा चांस दें। जी हैदरी साहब, हैदरी साहब माइक अनम्यूट। जी 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 शुरता भाई, देखें, आपने एक मकसद के लिए ये ब्रॉड शुरू की है, और जैसे मैंने आपसे पहली हमारी मुलाकात हुई थी कोई 2-3 दिन पहले, और आपने कहा था कि वो आगा खानियों क्या नाम है इनका, ये मिर्ज़ाइयों के लिए आपने ये ब्रॉड खोली है और बाकी जो चीज़ें, और उस दिन मेरी मुलाकात उनसे भी हुई है, क्या नाम है उनका, बड़ा ज़बरदस्त था उनके पास, वो जो बात कर रहे थे उनके साथ। तो आपने जिस मकसद के लिए ये ब्रॉड खोली है, ठीक है, आप खुदा और उसके रसूल के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने जो भी मिशन है इस ब्रॉड का, आप उस पर काम करें। इसमें लोग आएंगे, बेवकूफ़ भी आएंगे, ला इल्म का मकल भी आएंगे, जज्बाती भी आएंगे, और जो है गुस्ताख भी आएंगे। आपको हर तरह के लोगों से सामना होगा, क्योंकि ये आपकी ब्रॉड थी। अभी इस बंदे ने मुझे भी गालियाँ दी, पर मैंने जो है, क्योंकि ये आपकी जगह है, आपका घर है, तो मैं जो हूँ किसी भी तरह बदमज़गी नहीं फैलाना चाहता। नहीं तो जवाब मेरे पास भी थे, और फिर मेरे सवालों के एक का जवाब भी ये बंदा नहीं दे सकता था। मैं आपको इतना बता दूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस चीज़ को आप तूल ना दें, और आप अपना वक्त ज़ाया ना करें ऐसों के साथ। आप जो है जिस मकसद के लिए आपने ब्रॉड खोली है, अगर वो सुनना चाहते हैं आके सुने, और इनको अगर कुछ एतराज़ है तो इल्मी तरीके से बात करें, और ना कि ये चीज़ें पर्सनल हो जाए। ये जो है यानी मेच्योर लोगों की आदतें नहीं होती, और अगर ये टीनेजर है तो फिर आप 18 से कम उम्र लोग जो हों तो उनको आप जी हैदरी साहब और शुरता साहब, इजाज़त साहब क्यों उतारा मुझे कॉल से? सच सुनने की हिम्मत नहीं थी ना? यार काशिफ भाई, आप तो समझ जाओ यार, आप छोड़ दो ना, जब नहीं सुन रहे आप क्या, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बैठा हुआ कि हम लोग एक दूसरे के आगे अच्छे बने या हमें कोई रिवार्ड मिलेगा या कोई इनाम मिलेगा। यहाँ पे इनाम देने वाली या सिला देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। तो छोड़ दें, हमें सफाई देने का, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम एक दूसरे को सफाई दे दे के क्या साबित करना चाहते हैं। शाका भाई एक मिनट, इसका तो एक चेहरा ही नहीं है, ये 3-3 आइडिया मुख्तलिफ नाम पे रखा हुआ है। तो देखो किस किस्म का, और नाम देखो लव सीकर, इश्क मशूकियों वाले नाम रखे हुए हैं। यार शुरता भाई छोड़ देना, देखें ना, खत्म कर दें। एक चीज को इग्नोर कर देना तो वो खत्म हो जाती है फिर, लेकिन जब आप उसको जितना बढ़ाएंगे, और ये हैदरी भाई सर, मैं इसकी वो वाट लगाऊंगा सारी जिंदगी, याद रखिएगा। आपस में ना करें, आपस कुछ लोग, सबका माइंड अलग अलग होता है। शुरता भाई, हैदरी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपने मकसद, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम जारी रखें। इसको पर्सनल अपनी जात पे ना लें कि यार मेरा नाम खराब हो रहा है। आप शाका भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप उसके पास कोई प्रूफ है कि जहां पे मैं उस बंदे को कह रहा हूं कि आप गुस्ताखी करो और इसको मैं नीचे गिरा रहा हूं? लेकिन मैं उसके कसम से कह रहा हूं। लेकिन उनके या किसी के भी कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना, आपके मकसद पे फर्क पड़ना चाहिए। कुछ कह सकता हूँ शाका भाई और शुरता भाई, ये गुस्ताखी जो हुई है, क्या गुस्ताखी क्या हुई है? क्योंकि ये मुझे नहीं पता, ये क्या मतलब गालियां हुई है, ये क्या किस तरह की गुस्ताखी हुई है? पता नहीं। आप अगर इसको एक्सप्लेन करें कि गुस्ताखी क्या थी, बता ही नहीं रहे। क्योंकि गुस्ताखी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कोई भी नहीं कर सकता। बेशक। तो उसमें अगर यानी जरा सा भी यानी कि 0.1% 0% भी होगा ना, तो गुस्ताखी। एक मिसाल देता हूँ शुरता भाई को, मैंने खुद देखा है कि जब बात हद से बढ़ती है तो वो जज्बाती हो जाते हैं और उतार देते हैं। तो वो गुस्ताखी की आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसका एक पॉइंट तो पता चले कि वो क्या है। कुछ लोगों गुस्ताखी क्या है मतलब शुरता ने, मैं आपको एक बात बताता हूँ हैदरी भाई, मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूँ कि कुछ लोगों का अकीदा ये है कि सुअर का नाम लेने से आपकी जबान पलीत हो जाती है, 40 दिन तक आपकी दुआ कबूल नहीं होती। नहीं, इस बंदे को ले रहा हूँ ना, एक मिनट मेरी बात सुन ले, प्लीज मेरी बात सुन ले। तो सुअर का नाम लेने से जबान गंदी हो जाती है और 40 दिन तक जबान आपकी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ लोगों का अकीदा ये है, तो ये वो इसको गुस्ताखी समझते हैं ये नाम लेने को, हालांकि कुरान में ये लफ्ज है।
तो अब इंसान वहां पे क्या करे, वो लफ्ज ना पढ़े खंजीर का? तो मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, खंजीर की आप जो बात कर रहे हैं ना, को कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद शराब पीते हैं और कहते हैं कि शराब पीने के बाद जो है 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, और करते भी खुद है। तो ये जो अभी ये बंदा जो आया था, गुस्ताखी का यहीं से पता चलता है ना, वहीं से मेजर किया जाता है कि ये पॉइंट शाका है। भाई ये देखें लास्ट पे कैसे मोल्ड कर रहा है, कहता है कि जी मेरी लाइव है, मैं जैसे चाहूंगा चलाऊंगा, देखे कादियानियों को फिर बुलाएगा, फिर गुस्ताखी कराएगा। यार शाका भाई आप अच्छा जी, ये मैंने सुना नहीं अच्छा था। जी, गुस्ताखी वाली बात पे सारे सारे अपना मौकफ दे रहे हैं, मेरा मौकफ सुन लें। ये अभी भाई ने इल्जाम बहुत बड़े बड़े लगाए, सुन लें। मैं मुहाफिज भाई, बात सुन लेना। मुहाफिज भाई, अच्छा एक मिनट बात तो प्लीज, अगर जी जी, गुस्ताखी माफ। नहीं नहीं, मैं कोई बुरी बात नहीं करूंगा, सुन लें, गुजारिश सुन लें। अच्छा मेरी 1 मिनट बात सुन लो। देखो तकरीबन 58 मिनट हो गए हैं इसकी शुरता की ब्रॉड को ऑन हुए, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरता से मैंने रिक्वेस्ट की, छोटा भाई बोलता, ठीक है। हर तरह से मैं इसको एग्री करने के चक्कर में था कि यहाँ पे ये तमाशा ना लगे, ठीक है। लेकिन वो जैसे भी हुआ रिकॉर्डिंग में है, वो काम हो गया। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कोई हल नहीं है इस बात का, ठीक है। मेरी जान रखो, अगर तो आप लोग अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो जो मर्जी करते रहो। अगर मेरी कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरी कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं है। ये सुने ना, बात को खत्म, हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें उधर रिक्वेस्ट की, ये भाई भी उधर बैठे हुए थे। मैंने इन्हें कहा कि पहले मैंने वो डॉक्टर होली स्पिरिट से क्वेश्चन किया, फिर मैंने कहा कि उधर अगर कादियानी गुस्ताखी कर रहा हूँ तो एक मुसलमान भाई को नीचे उतारेंगे, उन लोगों के हवाले से आप क्या कहेंगे, ठीक है। डॉक्टर होली स्पिरिट ने उधर कुरान की आयत पढ़ के सुनाई कि अल्लाह भी उन पे लानत भेजता है। ये बेशक ये शुरता साहब उधर थे, सुन रहे भी थे, ठीक है। मैंने कहा शुरता साहब उन दसो, मैंने फिर मैं इनसे मुखातब हुआ डायरेक्ट, क्योंकि उस दिन ये उस ब्राड पे मौजूद, इनकी ब्राड थी बल्कि मैं उधर मौजूद था, ठीक है। वो उसने ये किया कि पहले वो इंसानियत का दास देने लगा, कादियानी आके जी शुरता साहब ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, एक और वो पप्पू मलिक था उसने भी पूछा, उसने कहा जी मेरा मजहब इंसानियत है, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा या मैंने पूछा कादियानी हो या क्या, उसने कहा मेरा मजहब इंसानियत है, ठीक है जी। फिर बाद में मिर्जा गुलाम कादियानी पे बात आ गई, तो मैंने कहा यार सीधा खुल के बताना, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फॉलोअर है तो सीधा खुल के बता। तो मुझे कहने लगा तमीज से, मैंने कहा मैं तो तमीज से नाम नहीं लेता, मैं लानत भेजता हूँ उसके ऊपर, ठीक है जी। शुरता साहब सुनते जाए, मैंने जो बात की, उसने कहा कि नौजुबिल्ला आपके नबी ने इस तरह की आगे से बात की कि ये दरअसल, फिर वो बात इस तरह स्टार्ट होगी, तो फिर मैं गुस्से में आ गया, मैंने सख्त बात की। शुरता साहब ने फौरी तौर पे मुझे नीचे फेंका। उसने मिर्जा कोने को नौजुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने की कोशिश की। मुझे इस पे तकलीफ पहुंची। मैंने भाई से ये रिक्वेस्ट की, शुरता साहब जब वो आए उधर, मैंने ये रिक्वेस्ट की कि शुरता साहब बहुत अरसे से ये चीजें नोट कर रहा हूँ, बाकी आप मेहरबानी करके, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप जाएंगे, हम आपको रोक नहीं सकते, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप उस बराड पे उधर बनी इस्राइल वाले जो उनकी बराड पे भी आप बैठे होते हैं, कादियानी जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी बराड पे भी बैठते हैं, आप ना बैठा करें। ये भाई बैठे हुए, मैंने ये रिक्वेस्ट की इनसे और कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा जी मेरी ब्राड है, मैं अपने तौर तरीके से वहां पे ये बदतमीजी स्टार्ट, इस तरह बात हुई। फिर लव सीकर भाई भी बीच में बोले, फिर उनका भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने 6 माह से इन्हें मैं नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब बात ये है, हमने भाई को रिक्वेस्ट की कि भाई ये ना करें, आप हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, ये कोई गलत बात है, आप भाई बैठे हुए मुझे बताएं। बात सुनिए, कोई दोहराते जा रहे हैं, अब जरा मुझे बात करने दें। मैं कुछ कह सकता हूँ मुंतजर भाई से? वो बंदे ने बात कर दी, अब मुझे रिस्पॉन्ड करने दे। शुरता यार अल्लाह दी वास्ते तेन छोटा भरा तेन शुरता भाई, शुरता भाई एक मिनट, मुंतजर भाई, ये जो कायदियानी था, जो भी था जिससे आप बात कर रहे थे, और उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने शुरता भाई की ब्रॉड पे क्या गुस्ताखी की, उसने बात कौन सी की, आप जरा ये बता सकते हैं? अयाज भाई देखिए, ये सारे जो है ना, हम इसी तरह का काम करते हैं, अक्सर हमारे इनके साथ टाकरे होते रहते हैं, तो और ये करते रहते हैं इस तरह की शातमियत, ठीक है ना। तो इस गहराई में जाने का फायदा नहीं है अयाज भाई। अभी मुख्तसर पता है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा आपका, प्लीज़ आप इस बात को छोड़ दें। शुरता भाई आपकी बहुत मेहरबानी, वो पानी में बताने वाली बात नहीं है, महाफिज मेरी लाइफ पे आओ, ठीक है, छोड़ो इस बात को, दफा करो। शुरता भाई आप स्टार्ट करें, ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको कहा मेरे भाई, अगर कोई गुस्ताख आता है तो उससे नाम आता वो। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। ओके चलो, ओके, अल्लाह मेहरबानी शायद। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, अच्छा जी, श्रोता ये भाई। बात मैं इब्ने आदम साहब, मैं आपको बताता हूँ, जी मैं हाँ, जी गौर बिस्मिल्लाह। से समझिए, उस बंदे ने जो पीस चाहिए था, लव सीकर ने वो ले लिया। उसने भाई रिकॉर्डिंग एक करनी बात थी। सुनो, मेरी सुने बात तो सुनो, सही। मेरी बात। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। जब से आपकी लाइव ऑन है ना, तब की मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी। जो कुछ भी है सब कुछ सेव है, आप फिक्र न करो। आप छोटे भाई हो, मैंने पहले ही आपको बोला हमारी कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। आपकी नीयत साफ है, इंशाल्लाह अजर आपको अल्लाह देगा। जी जी। अगर आपको नहीं, किसी आप गाली रिकॉर्डिंग से कर रहे ठेस हैं तो पहुंची, आप क्या मुझे मतलब गालियां क्या दे है लो। इसका, थोड़ा बताएं ना। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या रिकॉर्डिंग मतलब? इसीलिए की है, रिकॉर्डिंग इसीलिए की है कि जो भी जो करेगा सबको मतलब है कि पता लग सकता है कि यार ये प्रूफ है कि किसने क्या बोला है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। बिल्कुल ठीक। हाँ। बाकी इसमें अल्लाह ना करे मेरी कोई किसी किस्म की जाती चले, कुछ मेरी नहीं है। एक बात तो सुने ना। उस बंदे ने जी जी। आया है, उसने वो रिकॉर्डिंग की है, उसने मेरा नाम लिया है बड़े प्यार से और बड़े तहम्मुल से बात की है। आप ये खुद गवाह रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल मेरे पॉइंट है। पास बात तो श्रोता सुने ना भाई, यार। मेरे पास इब्ने, 1 to all है। यार मैं समझ रहा हूँ ना, लेकिन जी मेरी बात जो है पॉइंट है वो सुन लेना यार। ये जी जी, बंदा बोलो। पहले 20 मिनट तो बोलने नहीं दे रहा था, फिर अभी आया तो बड़े तहम्मुल से प्यार से बोला है, मेरा नाम बताया, मेरे शहर का नाम बताया, फिर कैनेडियन पासपोर्ट दिखाया, फिर ये कह रहा है कि कादियानियों का नरम गोशा है, फलां है, ये है, वो है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये दुनिया को दिखाएगा कि शुरता जो है उसका दिल बड़ा नरम है कादियानियों के बारे में। मैं लानत भेजता हूँ कादियानियों को, करोड़ों दर्जे लानत भेजता हूँ। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल, लानती, कजाब समझता हूँ। इससे बढ़ के कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं गाली नहीं निकाल सकता, माँ बहन की गाली नहीं निकालता हूँ। इससे बिल्कुल ज्यादा सही है। मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं, समझे? लेकिन वो बंदा क्या है कि वो दुनिया में ये मेरी अट्रोल करेगा। और आपने तो सर कोई, आपने तो चले जाना है। कोई इंसान मुसलमान जो है वो स्वाय शाका भाई के, उन्होंने आगे फिर भी कहा कि भाई मैंने इसको बड़ा पुराना जानता हूँ। कोई नहीं मुसलमान श्रोता भाई, बोलेगा देखिए कि भाई ये आप गलत कर रहे श्रोता हैं। भाई, जी सर। श्रोता भाई आप जब वहाँ थे भी तो उसने जब बात की तो हमने उसको बताया कि उनको काफिर, वो तो काफिर हैं। आप काफिर हैं तो काफिर, उससे आगे मैं उसको क्या कहूँ, खत्म हो गई बात। यार, ठीक है। अच्छा, अभी आगे ठीक है। अगर वो यानी नौजुबिल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी मेरे सामने तो कभी यानी इस तरह की बात नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। मगर यानी माजरत के साथ अगर कोई भी यानी कि या मसीही बरादरी ने या किसी और ने कुछ भी और हमें लगा है कि नाउजुबिल्ला रसूल की गुस्ताखी हुई है, तो वो अगर उन्होंने की है वो बुखारी, मुस्लिम और इन साहित्य से की है। यानी नाउजुबिल्ला कोई गाली तो नहीं दी है ना। नाउजुबिल्ला ये तो हो ही नहीं सकता कि फिर हम इतने यानी बदजात थोड़ी हैं कि हम या उनके साथ कोई बात तो करेंगे। मुसलमान ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता नाउजुबिल्ला के कोई गलत अल्फाज कहा जाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जी जी, तो बाकी तो ये तो शुरता भाई को भी मैंने देखा है कि अगर कोई इससे ज्यादा लिमिट से बाहर होता है तो शुरता खुद उसको जवाब दे देता है। और इतना देखें, हर को यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, सब एक उम्र को पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी उम्र को पहुंचे हुए हैं। यहाँ कोई 15-16 साल के बच्चे नहीं आ रहे जो अभी सीख रहे हैं। माशाल्लाह सबके पास इल्म है। तो बस ये है कि दिमाग की और जज्बात की थोड़ी कमी है और किसी के पास ज़्यादती है, असल मसला ये। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर कोई अपने हर चीज़ को है ना अपनी आना का मसला बना लेता है, ज़िद का, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते करते, इस्लाम के लिए, दीन के लिए बात करते करते, जब वो आपको गाली बकता है तो आप वो सारा टॉपिक भूल जाते हैं और आप कहते हैं कि इसकी ये हिम्मत, इसने मुझे गाली दी, मैं फला। तो वहां तो ये आपकी सारी मेहनत जाया होगी ना। ये तो इस चीज देखें को जी आप निकाल रहे हैं शागा कि साहब, मैं बस। मैं ना एक लाइव पे जाता हूँ, वो है मलक आवान, जिसे आप कादियानी, जो कादियानी है, जी जी जानते हैं ना आप? मलक जी जी, आवान। वो सबकी लाइफ पे होता है। जी जी, वो मेरी लाइव पे भी आते हैं, मैं उनकी लाइव पे भी आता हूँ। हाँ मैं जब उनकी लाइव पे जाता हूँ कि जब बोर हो जाता हूँ ना, तो वो जब बात करते हैं ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है। वो करते हैं, ओ मेरे मुसलमानों, वो ऐसे करते तो मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो ये लोग समझते हैं कि पता नहीं मेरी कोई उनके साथ कोई दिलचस्पी है या कोई मोहब्बत है।
ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ میں کسی ہاں میرا آپ کے ساتھ بھی سیم بیہیویئر ہے, میرا دوسرے کے ساتھ بھی سیم بیہیویئر, اس کو میں چینج نہیں کر سکتا. آپ مجھے کہ گالیاں نکالیں تو وہ میں نہیں نکال سکتا. یہ وہ چاہتے ہیں کہ میں گالیاں نکالوں, وہ یہ سب نہیں ہو کی سکتا. اپنی اپنی مرضی ہے, اپنی اپنی چوائس ہے, تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ یار اگر میں نے اس کے ساتھ مل کے اس کو گالی نہ نکالی تو پھر میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے کہ نہیں بھائی یہ ان کا حمایتی ہے. گالی کے علاوہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں تنزیہ ہوتے ہیں جس میں ان کا وہ گالی سے بڑھ کر ہوتے ہیں, جس میں ان کی اوقات بتا دی جاتی ہے. قادیانیوں کو جیسے میں کرتا ہوں بہت سی طنز ایسے مارتا ہوں کہ وہ جیسے وہ کرتے ہیں نا, ٹونٹے مارتے ہیں بغیر گالی بکے اچھے بنے. سر جی مجھے نہیں پتا, آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ لو سیکر کون ہے. یہ کاشف بھائی ہیں یار, یہ ختم نبوت کے جو ختم نبوت جو ہیں یہ بڑے پرانے اچھے بندے ہیں یار, مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے. یہ مفتی صاحب کے شاگرد بدتمیز انسان ہے, کون سے اچھے بندے ہیں بھائی. نہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں, لیکن بس صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں تو وہ تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں. اور بھائی قادیانی کے خلاف ہیں تو کیا پھر دوسری دفعہ پھر کہہ رہے ہیں اپنی بہن کا رشتہ دے دو. ہاں نہیں, یہ غلط, یہ الفاظ ان کے غلط تھے, یہ غلط ہیں. ایسا لو سیکر اگر تمہارے کوئی ماں بہن ہے یا کزن وزن ہے تو اپنی قادیانیوں کو پیش کر دو. نہیں لیکن شرطا بھائی آپ تو نہ کرو نا یار, آپ تو کہتے ہو میں نہیں کرتا. میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں گا اور پھر اجازت بھی لوں گا. دیکھیے جن کے پاس علم ہو وہ علم سے بات کریں گے نا تو وہ اس طرح ذاتیات پہ نہیں جائیں گے. یہ ماں بہن کی گالیاں یا ماں بہن تک جانا یہ کسی شریف خاندان کے فرد کا کام نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ شریف لوگ جو ہے وہ کافروں میں بھی ہیں, اور بدتمیز لوگ اور جو یعنی حلال کے نہ ہو وہ مسلمانوں میں بھی ہیں. تو اللہ ہم سب پہ رحم کرے, میں صرف اتنے کہہ سکتا ہوں. جی بالکل صحیح ہے. چلیں یار شرطا بھائی آپ تو ختم کریں نا, آپ چھوڑ دیں. اور آپ بھائی میں اس کو جہاں ملے گا میں ایسے ہی شروع ہوں گا اس کے ساتھ. شرطا بھائی میری ایک بات سننا, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انسان دنیا کی نظروں میں گر جائے لیکن اپنی نظروں میں نہ گرے. بس اس بات صحیح ہے, لیکن میں خیال رکھیں آپ. میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں بھائی. میں اس کو اب میں نے 1.5 سال صبر کیا ہے, جو آتا ہے مفت میں اٹیک کر دیتا ہے, لانتی نہ ہو تو. نہیں واقعی میں نے آپ کا یہ چیز میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. چلیں قادیانیوں کے ساتھ میں نے آپ کو ان کے ساتھ بھی دیکھا غصہ ہوتے ہوئے, لیکن میں نے دیکھا ہے آپ کے خلاف بہت سی باتیں ہوئی, آپ بہت خاموش رہے, اور اس وجہ سے میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑے صبر والے انسان ہیں. تو اس صبر کو قائم رکھیں, بس یہ ہو سکتا ہے. آ جاتے ہیں اپنے بکواس زبان پلیت کرتے ہیں, اسی زبان سے نبی کا نام لے رہے ہیں, اسی زبان سے گالی دے رہے ہیں. چھوڑیں شرطا بھائی یہ بات نہ کریں نا, پھر یہ اور بھڑکانے والی بات ہو جاتی ہے نا, چھوڑ دیں. جہاں اتنا بھڑکانے والی بات ہے, جو سچ ہے وہ صحیح ہے, وہ کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں. بالکل, لیکن ابھی چھوڑ دیں اس چیز کو, کیونکہ کچھ جگہوں پہ مصلیحت ہوتی ہے, انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. ہوتے ہیں کچھ آگے پیچھے جن کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہوتی, جذباتی ہوتے ہیں. تو اب یہ مطلب نام بتاؤ کیا یار, نام بتاؤ. چھوڑیں نا, نام شاہ صاحب آئے تھے, شاہ صاحب آئے نا جی, شاہ صاحب کو بھی میں ذرا دیکھوں ذرا. ارے نہ ایسے نہیں کریں, دیکھیں شرطا بھائی ایسے نہیں کریں, چھوڑ دیں. شاہ صاحب یا جو بھی ہیں وہ ہر بندہ, ہر مسلمان ہمارے لیے قابل عزت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ غلط کرتا ہے تو دیکھیں ہمیں بددعا نہیں دینا چاہیے کسی. یار شاہ بھائی سب لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے اس طرح کرنے دیں کاشف, اپنا شرطا بھائی کرنے دیں, جو کر رہا ہے کرنے دیں. سب کو پتا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, جو حق کے راستے پہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. باقی تو میرے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں شاہ بھائی, میں آپ کو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابن آدم کے سامنے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں قادیانیوں کی لائف پہ جاتا ہوں, وہ مجھ سے پوچھیں گے, میں بالکل وہی حق سچ بات کروں گا اور وہی کہوں گا کہ ایک مسلمان ایسا کرتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات تو ہے, سب قادیانی پوچھیں گے, ابھی یہ سارا معاملہ میں کسی بھی لائف پہ جاؤں گا, میں آپ کے خلاف یہ باتیں کروں گا انشاءاللہ. میں کہوں گا کہ یہ بدتمیز لوگ ہیں. اچھا میری بات سنو, اب کوئی کہے مجھے کہ میں ان کا فیور کر رہا ہوں, یہ فیور نہیں ہے, یہ سچ ہے اور حق ہے. آپ گالی بنائیں سب لوگ. شرطا چل اب دیکھو, میں نے آپ کو اتنا ٹائم موقع دے دیا ہے نا میری جان, ابھی میری سن لو, ٹھیک ہے. میں پھر وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں بڑے بھائی کے ناطے, اس ٹاپک کو ادھر ختم کر دو. انشاءاللہ کسی اور مقام پہ ہم اس کو بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی تشفی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں آپ کے حق میں جائیں گی. بالکل میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں شرطا بھائی آپ کو. ہاں
اور اس سر وہ ٹاپک کو اب نہیں چھیڑنا. میں تو میری بات ڈرتا سن لیں میرے جی بھائی. سر جی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے یار, ڈرتا کون ہے کسی سے؟ یہ سوشل میڈیا ہے, کون کس سے ڈرتا ہے؟ جی جی آپ اللہ سے ڈرو بس, ٹھیک ہے نا, اور کسی سے کوئی نہیں ڈرتا. اور باقی اس ٹاپک کو ابھی ادھر ختم کر دو. بہت سارے لوگ آپ کو پوچھیں گے اور آپ بول دو کہ یار بس جو ہو گیا سو ہو گیا, اس بات کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. انشاءاللہ اس بات پہ ضرور میں کچھ نہ کچھ آپ کے حق میں کرواؤں گا, ٹھیک ہے.